Welcome friends, I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and will benefit both the MC, that is managing committee, and the society members. It has very simple language articles, draft of applications, earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Now, today's topic is sinking fund and other funds, types of funds, investments, usages एंड विड्रॉल्स. मतलब जैसे हमारे सोसाइटी में सिंकिंग फंड है, रिपेयर फंड है, रिजर्व फंड है, कॉर्पस फंड है वगैरह वगैरह. तो वो फंड्स क्या क्या चीजें हैं आज थोड़ा सा हम उसमें समझ के लेते हैं. टिपिकली सिंकिंग फंड was originally designed to be used as emergency funds for major repairs of CHS society buildings. However, after the 97th Constitutional Amendment, read with Section 2, bracket 27, society means a cooperative society registered or deemed to be registered. And this is the important thing, which is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise and adhering to the cooperative principles and values. इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 2 ब्रैकेट 27 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस घोषित किया हुआ है जो अपना कार्यभार खुद ही करना है. अपने फंड्स को क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो कार्यभार खुद ही आ गया. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोनोमस एंड वॉलंटरी टू फुलफिल आवर कॉमन नीड्स एंड एस्पिरेशंस. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ रजिस्टर्ड बायलॉज, CHS is responsible for collecting various funds from members along with routine service and maintenance charges. Some of the funds are like example sinking fund जो बायलॉ 13C के अंडर में कवर्ड है. बायलॉ 13C बोलता है कि मिनिमम 0.25% of the construction cost. Now this construction cost has to be determined only and only on a construction cost certificate issued by a registered architect. The general body may increase this minimum 0.25% to any higher percentage, but only through a prior notice agenda. उस एजेंडा होना चाहिए to discuss and decide to increase sinking fund from 0.25% to 0.40%, 0.50%, or 1%, or whatever percent. And this agenda should be passed by with majority resolution. मतलब उस जनरल बॉडी मीटिंग में मेजॉरिटी रेजोल्यूशन से ये पास होना चाहिए. If it is not passed with the majority resolution, then you cannot increase your 0.25%. There is no requirement of this 0.25%, minimum 0.25% to be amended into the bylaws, because the bylaw says 0.25%, but it does not prescribe maximum percentage of the sinking fund. So you can ignore to amend the bylaws. Note that the construction cost is to be calculated on each flat and not on entire building. That is written in the bylaw itself. This calculation has to be done on area of individual flat on per feet basis and not on per flat basis. मतलब अगर आपका सोसाइटी, आपका फ्लैट अगर मानो 500 स्क्वायर फीट का है और दूसरे का 650 स्क्वायर फीट है, तो आपको 500 स्क्वायर फीट के ऊपर सिंकिंग फंड कटना है और उसको 650 स्क्वायर फीट पर
सिंकिंग फंड कटना है. It is always preferable that the construction cost for sinking fund and repair fund should be revised every 2 years based on a certificate issued by a registered architect. This resolution also should be passed in a general body. ये क्यों करना है हमें? क्योंकि आपकी बिल्डिंग मानो 50 साल पुरानी है, उस समय कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 200 रुपया रहा होगा, तो आपका सिंकिंग फंड उस 200 रुपए के ऊपर अभी भी कैलकुलेट होते हुए आ रहा है. लेकिन आज के दिन पे 200 रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं है. आप बिल्डिंग को रिपेयर करोगे, प्लास्टर करोगे, पेंट करोगे, तो वो 200 रुपए में होने वाला नहीं है. आई विल एक्सप्लेन, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी आते समय में मिलेगा. द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ईयरली कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंकिंग फंड रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर्स shall be duly posted and entered into the sinking fund register. रजिस्टर में हर फ्लैट का एक लेजर फोलियो पेज होता है, इंडिविजुअल फ्लैट का, और उसमें बरस में मानो 1200 रुपया कलेक्ट किया सिंकिंग फंड का, तो आपके उस फ्लैट के अगेंस्ट में, उस पर्टिकुलर ईयर के अगेंस्ट में आपको उसको पोस्ट करना है. एक बार बैलेंस शीट में दर्शाया हुआ, जो शो करते हैं बैलेंस शीट में, मानो सिंकिंग फंड बैलेंस शीट में आपने 10 लाख रुपए शो किया हुआ है और किसी कारणवश आपने सिंकिंग फंड मेजर रिपेयर फंड्स के लिए यूटिलाइज कर लिया, काम में ले आए, वापर लिया आपने, तो ये सिंकिंग फंड वापस मेंबरों से जमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बायलॉ 13C का वॉयलेशन होगा. बायलॉ 13C क्या बोलता है? 0.25% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. लेकिन आप हर महीने 0.25 भी ले रहे हो, और अगर आप ये भी बोलते हो कि नहीं, जो हमने वापर लिया ना उसको हमको वापस लेके आना है, तो वो अलाउड नहीं है, वो इलीगल है और वो बायलॉ के विपरीत जाता है. टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, सोसाइटी मस्ट पब्लिश ए लिस्ट ऑफ ईयर वाइज समरी ऑफ सिंकिंग फंड. This should include all earlier sinking fund amounts and interest thereon and distribute it along with balance sheet for AGM proceedings and approval. इसका मतलब ये हुआ कि मानो आपकी सोसाइटी 10 बरस पुरानी है, तो 10 बरस पुरानी का फाइनेंशियल ईयर, लेट अस से फाइनेंशियल ईयर 2011-2012 का अमाउंट कितना है? मानो 1 लाख रुपया. ऐसे ही आपके 10-12 एंट्री आएंगे 2022 तक का, और उसका इंटरेस्ट भी आएगा. सिंकिंग फंड का अमाउंट, उसका टोटल इंटरेस्ट, उस साल में क्या आपने अर्न किया वो बैंक सर्टिफिकेट देता है, और उसका टोटल, और लास्ट में उसका ग्रैंड टोटल होगा, ताकि सारे मेंबर को ये पता चले कि सोसाइटी में सिंकिंग फंड कितना जमा है. सिंकिंग फंड आप सिंकिंग फंड को कोऑपरेटिव बैंक्स और नेशनलाइज्ड बैंक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. आप उसको प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो. और जो सिंकिंग फंड आपको नेशनलाइज्ड और कोऑपरेटिव बैंक्स में इन्वेस्ट करना है, वो सबसे लॉन्गेस्ट पॉसिबल पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना है. इंटरेस्ट जनरेटेड ऑन सिंकिंग फंड मस्ट बी री इन्वेस्टेड एंड नॉट यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पसेस. इसका मतलब ये हुआ कि मानो आपके सोसाइटी में 10 लाख रुपए का सिंकिंग फंड है और उसको हर साल उसका 1 लाख रुपया इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो 1 लाख रुपया भी सिंकिंग फंड में ही री इन्वेस्ट होगा और उसे सोसाइटी के जनरल खर्चों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. तो सिंकिंग फंड इज सिंकिंग फंड कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स प्लस इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड दैट यू रिसीव फ्रॉम द बैंक और एनी इन्वेस्टमेंट एजेंसी. सिंकिंग फंड यूज करने का जो बायलॉ है उसको दिया हुआ है बायलॉ 14C में. आई विल एक्सप्लेन सिंकिंग फंड क्या किस किस चीजों में यूज होता है. जैसे सिंकिंग फंड है वैसे सेम टू सेम रिपेयर फंड है. मेजर रिपेयर फंड अलग है और रिपेयर फंड अलग है. रिपेयर फंड इज शोन इन बायलॉ नंबर 13A. इट इज मिनिमम 0.75% of the construction cost, again based on the certificate issued by a registered architect. जनरल बॉडी चाहे तो ये रिपेयर फंड की भी मात्रा बढ़ा सकती है फ्रॉम 0.75% to any percent that is possible, but only via a prior notice
एजेंडा एंड मेजॉरिटी जीबी रेजोल्यूशन। इसमें छोटा सा एक लेकुना ऐसा है कि सिंकिंग फंड अगर 0.25% है तो रिपेयर फंड इज 3 times ऑफ दैट, so total it all it comes to 1%. However, if you increase your sinking fund to 0.50%, then your repair fund also will be increased appropriately. The repair fund increase goes to 1.50. In this also, the construction cost is to be calculated on each flat and not entire building. बिल्डिंग का मतलब कॉमन एरियाज वगैरह कैलकुलेट नहीं करना है, उसके अंदर लिफ्ट एरियाज है, सीडी एरियाज है, पोर्च है, पोडियम है, वगैरह वगैरह. This again calculation has to be done on the area of individual flat on per feet basis and not on per flat basis. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका फ्लैट नंबर 101 है तो सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड फ्लैट 101 का जो एरिया है उस पे लगेगा. दिस ऑल्सो शुड बी प्रिफरेबली रिवाइज्ड, दैट इज द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट should be revised every 2 years, again based on a certificate issued by a registered architect, again by issuing prior notice agenda and passing it through a majority general body resolution. The actual amount of yearly contribution of repair fund received from members shall be duly posted or entered in the repair fund register. सिंकिंग फंड का रजिस्टर अलग था और रिपेयर फंड का रजिस्टर अलग है. उसके इंडिविजुअल फ्लैट के अगेंस्ट में उसका जो लेजर फोलियो का पन्ना होगा, फ्लैट नंबर का लेजर फोलियो का पन्ना मतलब 101 का एक पन्ना है, 102 का दूसरा पन्ना है, एंड सो. अगेन रिपेयर फंड अगर किसी कारण से मेजर सिविल रिपेयर्स के लिए यूटिलाइज कर लिया, मानो आपके सोसाइटी में 40 लाख रुपया रिपेयर फंड का जमा है और आपने वो फंड बिल्डिंग के प्लास्टर, पेंटिंग, लिफ्ट रिप्लेस करने के लिए, इलेक्ट्रिकल लाइन रिप्लेस करने के लिए, टोटल पानी का लाइन रिप्लेस करने के लिए यूज कर लिया, तो उसे आप मेंबर से ये नहीं कह सकते हो कानूनी तौर पे कि भाई हमने तो यूज कर लिया रिपेयर फंड 40 लाख रुपया, अभी उसको वापस हमको लेके आना है, वापस आपको आपसे जमा करना है. तो दैट विल बी अगेन वायलेटिंग बायलॉ नंबर 13A, जो बोलता है कि सिर्फ 0.75% मिनिमम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको लेना है, उसके ऊपर आपको कुछ नहीं लेना है. अगेन टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, सोसाइटी मस्ट पब्लिश ए लिस्ट ऑफ ईयर वाइज summary of repair fund, which should include all earlier repair fund amounts and interest thereon. जैसे मैंने आपको पहले बताया सिंकिंग फंड और उसका इंटरेस्ट, ये दोनों मिला के वापिस सिंकिंग फंड ही हो जाते हैं और उसे आप और कोई कामों में यूज नहीं कर सकते हो. और वो बैलेंस शीट में जो फिगर आप दिखाते हो, इट शुड मैच विद दैट ईयर वाइज समरी. रिपेयर फंड कैन ऑल्सो बी इन्वेस्टेड इन ए सेपरेट एफडी in cooperative banks and nationalized banks for the longest possible period possible. Investments cannot be made in private banks. Interest generated on repair fund must be reinvested and not utilized for any purposes. इसका मतलब ये हुआ कि आपका रिपेयर फंड का जो भी फिगर है, जो भी आंकड़ा है आपका बैलेंस शीट में, वो जो आप इन्वेस्ट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट करोगे या नेशनलाइज्ड बैंक में इन्वेस्ट करोगे, लेकिन प्राइवेट बैंक में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे. रिपेयर फंड का यूसेज का पैरामीटर्स बायलॉ नंबर 14B में दिया हुआ है. सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड के अलावा देयर इज अनदर फंड कॉल्ड एज रिजर्व फंड. इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 66 read with bylaw number 12A and 12B. रिजर्व फंड शुड बी क्रिएटेड. जो मेंबरशिप का एंट्रेंस फीस आता है सालों में, नए मेंबरशिप के ट्रांसफर के वक्त मेंबरशिप ट्रांसफर फीस आता है, एक मेंबरशिप एंट्रेंस फीस होता है जो 100 रुपीज पर पर्सन लगाया जाता है. जैसे अगर एग्रीमेंट में 2 नाम है तो मेंबरशिप एंट्रेंस फीस 200 रुपए लेना है, 100 रुपए नहीं लेना, 200 रुपए लेना है. और मेंबरशिप ट्रांसफर फीस जो 500 रुपए लिया जाता है, और शेयर ट्रांसफर प्रीमियम जो मुंबई शहर में 25,000 रुपए लिया जाता है. ये सारा मिला जुला के ये सारा फंड जो अमाउंट है
जो वो रिजर्व फंड में आपको डिपॉजिट करना है। इसको रेगुलर सोसाइटी के खर्चे के लिए यूज नहीं करना है। इसके अलावा बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो एक जगह आपको ये देखने को मिलेगा कि इनकम ओवर एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर इनकम है तो प्रॉफिट हो गया, अगर एक्सपेंडिचर है तो लॉस हो गया। तो अगर इनकम है वहां पे और वो ज्यादा बच जाता है, अगर इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो वो भी आपको रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है। रिजर्व फंड का यूसेज का फंडा जो है, पैरामीटर्स जो है, मॉडलिटीज जो है, वो बायलॉ नंबर 14A में दिया हुआ है। सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड और रिजर्व फंड के अलावा एक और फंड है कॉर्पस फंड, जो बायलॉ नंबर 7A(I) में दिया हुआ है। कॉर्पस फंड कैन बी सेपरेटली कलेक्टेड फ्रॉम मेंबर्स अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन, अभी नया सेक्शन है, सेक्शन 154B-1 ब्रैकेट 7 ब्रैकेट 7, 154B(1) ब्रैकेट 7। तो अगर प्रायर नोटिस, एजेंडा, मेजॉरिटी, जीबी रेजोल्यूशन ये डिसाइड करते हैं कि हमें कॉर्पस फंड नामक एक चीज भी मेंबर से लेना है फॉर सो एंड सो मंथ्स और सो एंड सो ईयर वगैरह वगैरह, तो वो भी कलेक्ट करने का अभी नया ये अमेंडमेंट आया हुआ है 2019 जुलाई में। उसके तहत आप कॉर्पस फंड भी आप जमा कर सकते हो। सेक्शन 154B-15 Amendment Act, MCA's Amendment Act, also prescribes that society can create other funds except, but this needs to be defined and along with their specific usages via prior notice, agenda and majority GB resolution। इसका मतलब ये है कि आप सेक्शन 154B-15 के अंतर्गत आप और भी कोई फंड्स मेंबर से जमा कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो फंड्स आपने प्रायर नोटिस एजेंडा में दिया है और मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान, जनरल बॉडी मीन्स AGM ले लो या SGM ले लो, उसमें पास किया हुआ है मेजॉरिटी के साथ में। पहले एक जमाने में ऐसा हुआ करता था कि और कोई फंड्स मेंबर से लेना कानून का वायलेशन था, पर अभी वो अलाउ कर दिया हुआ है। एक और फंड है मेजर सिविल रिपेयर फंड, जो बायलॉ 13(20) से निकलता है। ये भी इंडिविजुअल फ्लैट पर एरिया बेसिस आपको कलेक्ट करना है। ये पर फ्लैट बेसिस नहीं कलेक्ट करना है, ये पर एरिया बेसिस कलेक्ट करना है। बायलॉ 13(B) में लिखा हुआ है। अब मेजर सिविल रिपेयर फंड किस चीजों के लिए यूज होता है? जैसे मानो सोसाइटी ने एक प्रोजेक्ट बनाया कि हमको पेंट करना है और पेंटिंग में मानो 10 लाख रुपए खर्च, तो 10 लाख रुपया जनरल बॉडी के प्रायर नोटिस एजेंडा के थ्रू, मेजॉरिटी रेजोल्यूशन के थ्रू आप पास कर सकते हो। ये डिसाइड कर सकते हो कि उसको कितने महीने के लिए लेना है और क्या अमाउंट लेना है। जो भी कोई फंड्स है उस पे आपका बायलॉ प्रिस्क्राइब इंटरेस्ट लागू पड़ता है, भले वो मेजर सिविल रिपेयर फंड हो या और कोई भी फंड हो। आप लोगों से डोनेशन फंड भी ले सकते हो, आप एक डोनेशन का खाता भी खोल सकते हो, बायलॉ नंबर 7(A)(E) में लिखा हुआ है, लेकिन फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेंबर्स। ये डोनेशन फंड आप न्यू मेंबरशिप ट्रांसफर जब करते हो तब आप नहीं ले पाओगे, ये स्पेसिफिक है। तो अगर मेंबर चाहेगा, वो बोलता है कि ठीक है मैं सोसाइटी को अपनी खुशी से ये 5 लाख रुपए डोनेट करता हूँ, तो वो डोनेशन फंड में जाके चला जाएगा। उसका जो इंटरेस्ट आएगा वो डोनेशन फंड के रोटेशन में ही डोनेशन फंड ही बन जाता है। एक और भी नया फंड है एजुकेशन फंड, जो नॉर्मली सोसाइटी मेंबर की ट्रेनिंग वगैरह के लिए प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये प्रिस्क्राइब्ड है सेक्शन 68 रेड विथ, मतलब सेक्शन 68 है पुराना ओरिजिनल एक्ट, और नए अमेंडमेंट एक्ट में 154B-6 रेड विथ एक और भी सेक्शन उसमें जुड़ गया है 154B-28। ये लेना है 10 रुपया पर मेंबर पर मंथ, और इसको लेके जमा करना है सालाना, ईयरली जमा करना है, कोई भी स्टेट फेडरल सोसाइटी में जमा करना है। इन सब के अलावा आपका होता है एक एथोराइज्ड शेयर कैपिटल,
और एक होता है पेड अप शेयर कैपिटल। अथोराइज शेयर कैपिटल, जब आप सोसाइटी नए नए रजिस्टर करते हो तो आप ये बोलते हो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कि हमारा अथोराइज कैपिटल मानो 10 लाख रुपए का हो, लेकिन सोसाइटी में सिर्फ लेटर से 100 मेंबर ही है। और उस रजिस्ट्रेशन में के दौरान आप ये बोलते हो कि हमारा एक शेयर 50 रुपए का होगा और हर मेंबर को मिनिमम 5 शेयर देना है, मतलब 250 रुपया हुआ। तो ये जो 250 रुपया आप कलेक्ट करोगे इंटू 50 रुपीज, ये हो जाता है आपका पेड अप शेयर कैपिटल, जो बायलॉ 8 में डिस्क्राइब्ड है। आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि मेंबरशिप एंट्रेंस फीस 100 रुपए के हिसाब से जो लेते हैं हर मेंबर के से, नए मेंबर के ट्रांसफर के टाइम पे, या गिफ्ट डीड ट्रांजेक्शन के टाइम पे भी, या रिलीज डीड ट्रांजेक्शन के टाइम पे भी, या कोई कोर्ट का डिग्री आता है उस समय भी, तो वो बायलॉ 37 में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। मेंबरशिप ट्रांसफर फीस फिक्स्ड है 500 रुपया न्यू ट्रांसफर्स के टाइम पे, वो भी बायलॉ 37 में प्रिस्क्राइब्ड है। और शेयर ट्रांसफर प्रीमियम वो भी फिक्स्ड है 25,000 रुपए मुंबई शहर के लिए कम से कम, और वो भी वन टाइम ही लेना है, वो भी बायलॉ 37 में प्रिस्क्राइब्ड है। आपको ये भी बता दें कि देर आर कोर्ट जजमेंट्स विच प्रिस्क्राइब्स और विच हैज क्लियरली सेड कि शेयर ट्रांसफर प्रीमियम 25,000 रुपए से ज्यादा लेने से वो एक गुनाह हो जाता है। वो गुनाह 4 किस्म के कानून के तहत होता है। एक तो एमसीएस एक्ट है, आप वॉयलेट करते हो, नेग्लिजेंस करते हो, डेफिशिएंसी करते हो 73(1)(a)(b) सेक्शन के तहत। फिर सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी के अंडर भी आप लायबल हो जाते हो। फिर आप क्रिमिनल लॉज में भी लायबल हो जाते हो। फिर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी लायबल हो जाते हो। देयर आर सेवरल जजमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट इन दिस रिगार्ड। आपको ये भी बता दें कि कोई भी फंड आप जमा करोगे मेंबर से, भले वो सिंकिंग फंड हो, रिपेयर फंड हो, रिजर्व फंड हो, कॉर्पस फंड हो, एनी फंड, तो यू हैव टू add GST on it. So GST is payable as may be applicable on collection of any such funds provided society turnover crosses 20 lakhs. अगर आपका टर्नओवर 20 lakhs तक है, 1 रुपए नीचे 20 lakhs के, तो आप GST आपको डिडक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं, लेवी करने की जरूरत नहीं, आपको डिडक्ट करने की जरूरत है। आपको ये भी बता दें कि जो भी आपने इंटरेस्ट कमाते हो इस ऑल इन्वेस्टेड फंड से, उस पे अभी नए रूलिंग के हिसाब से इनकम टैक्स इज पेएबल ऑन इट, इन द सेंस सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, रिजर्व फंड, कॉर्पस फंड, whatever fund. So if you are investing it anywhere and if you are going to earn interest on it, then you have to pay income tax also. Earlier we used to think that these funds are tax free, but now the income tax authorities are not allowing that same thing. आपको एक मजेदार जानकारी बता दूं कि जो भी आपके सोसाइटी में फंड्स हैं, थिंकिंग फंड, ये फंड, वो फंड वगैरह वगैरह, they can be attached by statutory authorities for failure to pay outstanding statutory dues. जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया आपने, तो प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट वो पैसा कहाँ से वसूली करेगा? अगर आपके बैलेंस शीट में ये सारे फंड्स हैं तो दे कैन अटैच दैट फंड। एनी टैक्स नहीं पे किया आपने, नॉन एग्रीकल्चरल टैक्स, तो भी आपका ये फंड्स अटैच हो सकता है। इनकम टैक्स पे नहीं किया, सोसाइटी, कई सोसाइटी, बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती है, उनका इनकम टैक्स होता है, नहीं पे किया तो भी आपके ये फंड्स अटैच हो सकते हैं। सेम विथ प्रोफेशन टैक्स ऑल्सो एंड सेम विथ जीएसटी। आई विल रिपीट, ऑल फंड्स जो भी हमने अभी बात किया, ऑल फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड नेशनलाइज्ड बैंक्स ओनली। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी मेड इन प्राइवेट बैंक्स। अगर आप ये सोचोगे कि ये वाला प्राइवेट बैंक इस कोऑपरेटिव बैंक से या इस नेशनलाइज्ड बैंक से 2% इंटरेस्ट ऊपर दे रहा है तो मैं वहां पे इन्वेस्ट कर दूं, तो वो अलाउड नहीं है। अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आया हुआ है इंडियन ट्रस्ट एक्ट, और उसके साथ साथ में एमसीएस एक्ट का भी अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट के हिसाब से सेक्शन 154B-17
क्या बोलता है कि ऑल फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन अदर सोसाइटीज, बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह, शेयर्स मतलब इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज और गवर्नमेंट्स, securities by government agencies, but this can be invested only after proper prior notice agenda and majority GB resolution. Section 154B-17 provides that society can invest funds in various specified securities like government bonds, shares, equity shares, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और विभिन्न प्रकार के सिक्योरिटीज। लेकिन इसके लिए आपको जो जरूरी चीज करनी है वो ये है कि यू हैव टू कॉन्टेक्ट ए सेबी, SEBI, सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, एंड यू हैव टू टेक हिज रिपोर्ट regarding such investments in specified securities, which will be required for this purpose and shall be attached with the notice agenda for consideration and discussion of the GB members. मानो आपको कोई गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, आपके पास में 10 अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट बॉन्ड्स आ गए, लिस्ट मिल जाती है इंटरनेट पे, लेकिन उसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, उसका रेटिंग्स वगैरह क्या क्या है, लाइबिलिटीज कितनी है, उसमें कितना पीरियड मिलता है आपको, उसमें कितने इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट मिलता है, क्या और लाइबिलिटीज है और वगैरह वगैरह, ये सबको सर्टिफाई करना है बाय ए रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो उसका रिपोर्ट आता है, उसको बोलना है कि हम आपको अपॉइंट करते हैं, इस चीज के बारे में हमको रिपोर्ट दो कि मेरे बैंक में 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मैं ये अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट करूं। तो वो रिपोर्ट देता है, ये बताता है कि आप यहाँ या फला फला जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। वो रिपोर्ट आपको नोटिस एजेंडा के साथ में जनरल बॉडी को देना है, ताकि जनरल बॉडी मेंबर्स AGM या SGM के मीटिंग के दौरान उसको डिस्कस कर सके और उस पर डिस्कस करके डिसीजन ले सके। इन्वेस्टमेंट्स इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज like government bonds, equity shares, debentures, mutual funds, other securities, etc., should not be made without proper report of SEBI registered financial advisor. This is mandatory to save the MC, managing committee, from any futuristic, vicarious or criminal or civil liability. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैनेजिंग कमेटी बोलती है कि हमारे पास जो 10 लाख रुपए पड़ा है, हम ये डिवेंचर में डाल देते हैं, वो डिवेंचर में डालना या उसका एनालिसिस करना या उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट का अथॉरिटी मैनेजिंग कमेटी के पास नहीं है। इसीलिए आपको सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट मंगाना जरूरी है, ताकि मेंबर्स ये नहीं कहे आपको कि आपने हमारा फंड्स डुबा दिया। वो रिपोर्ट के बेस पे ही आपको इन्वेस्ट करना है, और उस रिपोर्ट के बगैर अगर आपने इन्वेस्ट किया तो मैनेजिंग कमेटी के ऊपर क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी खड़ी हो जाती है। सेक्शन 154B18 क्या बोलता है कि आपका जो भी फंड्स आपके पास जमा है, सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, ये वो वगैरह वगैरह, ये सारे फंड्स यू कैन यूटिलाइज, आप उसे खर्चा कर सकते हैं फॉर नॉन रूटीन एक्सपेंडिचर। अब नॉन रूटीन एक्सपेंडिचर को क्या समझे, अगर आप बैलेंस शीट देखोगे और बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो आपको एक्सपेंडिचर कॉलम दिखाई देगा ऊपर हेडिंग में, और उसके अंदर जितने भी हेड्स हैं, जैसे प्रिंटिंग और स्टेशनरी है, जैसे सैलरी है, जैसे AMC कॉन्ट्रैक्ट्स है वगैरह वगैरह वगैरह, बिजली का खर्चा है वगैरह, पानी का खर्चा है, तो ये रूटीन एक्सपेंडिचर है। तो जो रूटीन एक्सपेंडिचर के लिए ये फंड्स आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, इवन बाय टेकिंग परमिशन फ्रॉम द जनरल बॉडी। रूटीन एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में आपको दिखाई देगा। दिस ऑल्सो मीन्स दैट सच फंड्स जो अभी हमने डिस्कस किया, दे कैन बी यूटिलाइज फॉर रिप्लेसिंग लिफ्ट, एंटायर इलेक्ट्रिसिटी सर्किटरी, योर वाटर पंप्स, योर जनरेटर सेट्स, कंपाउंड वॉल्स, पेंटिंग, प्लास्टर, वाटर टैंक रिपेयर, एक्सेट्रा।
मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज टू बी अंडरस्टूड, ज्यादा जरूरी है ये समझना, इस फंड को यूज करने के लिए किसी भी अधिकारी, अथॉरिटी, यानी डिप्यूटी रजिस्ट्रार है या ऑडिटर है वगैरह वगैरह, इनकी परमिशन की जरूरत नहीं है. There is no permission required from any type of authority or auditor to use this type of fund. However, लेकिन it is mandatory to use such funds only after prior notice agenda and majority GB resolution. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये फंड्स यूज करना है, उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओ, आर्किटेक्ट का या इंजीनियर का, जो भी काम के लिए यूज करना है उसका रिपोर्ट होना चाहिए. उस रिपोर्ट के बेस पे जनरल बॉडी में नोटिस एजेंडा डालो, डिस्कस करो रिपोर्ट के साथ में, और जनरल बॉडी का मेजर रेजोल्यूशन जब आ जाता है कि ठीक है हमारे पास ये फंड का पैसा हम इस काम के लिए यूटिलाइज करेंगे, तो जब जाके इन सारे फंड्स में से इंडिविजुअल फंड्स या सारे फंड मिला के आप सारा का सारा पैसा यूज कर सकते हो. सेक्शन 64, इंटरेस्ट अर्न्ड एक्यूमुलेटेड ऑन सिंकिंग फंड एंड रिपेयर फंड cannot be used to pay any honorarium to managing committee or dividend to any society members. Such earned accumulated interest on sinking fund and repair fund forms integral part of sinking fund and repair fund. इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 64 बोलता है, कई सोसाइटीज में क्या होता है कि मैनेजिंग कमेटी को ऑनरिंग दिया जाता है कि ठीक है आपने इतनी इतनी सेवा किया है, हमारा बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख रहा है, तो उसका हम 10% आपको ऑनरियम देने के लिए अप्रूव कर दें. वो बैलेंस शीट में अगर इनकम है तो ऑनरियम अप्रूव कर सकते हो, लेकिन वो ऑनरियम सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड से निकाल के मैनेजिंग कमेटी को नहीं दिया जा सकता, ना डिविडेंड दिया जा सकता है. कई सोसाइटीज डिविडेंड भी देती है, तो वो भी नहीं दिया जा सकता. ये सारी चीजें सेक्शन 64 में दर्ज है. इसका मतलब ये भी होता है कि सिंकिंग फंड के ऊपर जो भी इंटरेस्ट अर्न किया हुआ है वो फिर सिंकिंग फंड ही कहलाएगा. रिपेयर फंड का इंटरेस्ट जो अर्न किया वो भी रिपेयर फंड ही कहलाएगा. कई सोसाइटीज में आप देखेंगे कि उनके बिल में सिर्फ सिंकिंग फंड दिया हुआ है, रिपेयर फंड नहीं दिया हुआ है, रिपेयर फंड कलेक्ट नहीं कर रहे. आपको ये बता दें कि मैनेजिंग कमिटी इज लायबल फॉर फेलियर और से नॉट कलेक्टिंग failed to collect bylaw defined repair fund and sinking fund. bylaw defined मतलब क्या था, sinking fund वो 0.25% और repair fund वो 0.75%. अगर मैनेजिंग कमिटी ने ये फंड कलेक्ट नहीं किया हुआ है, इसका मतलब दे हैव कॉस्ट losses to the society and managing committee becomes liable under section 73(1)(ab) read with section 146E for its negligence, deficiency and causing loss to the society members, to the society. ऑडिटर, जब आपका ऑडिटर करता है आपका अकाउंट्स पैनल ऑडिटर, तो ऑडिटर इज लायबल टू रिफ्लेक्ट एमसीज मैनेजिंग कमिटीज फेलियर्स एंड वायलेशंस रिगार्डिंग नॉट कलेक्टिंग और नॉट इन्वेस्टिंग द सिंकिंग फंड एंड रिपेयर फंड इन अप्रोप्रिएट हेड ऑफ अकाउंट्स, हेड ऑफ फिक्स डिपॉजिट. इसका मतलब ये है कि अगर आपने सिंकिंग फंड 1 साल का 100 रुपया जमा कलेक्ट किया हुआ है, तो आपको वो 100 रुपया सिर्फ और सिर्फ सिंकिंग फंड के हेड ऑफ अकाउंट में ही डालना है, सिंकिंग फंड के फिक्स डिपॉजिट्स में डालना है, और उसको उस ईयर के बैलेंस शीट में आपको दर्शाना है, शो करना है. आपको एक और चीज भी बता दें, मैनेजिंग कमिटी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्निंग बॉडी एंड ऑल्सो the trustee of society properties which includes sinking fund. मतलब सोसाइटी की प्रॉपर्टी में क्या क्या है, जो सिंकिंग फंड है, जो रिपेयर फंड है, और बाकी के जो फंड्स है जो आपने बैंक में जमा किया है ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी विच इज एक्चुअली ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स. तो ये अधिकार किसको दिया हुआ है, मैनेजिंग कमिटी को दिया है. बिकॉज क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मैनेजिंग कमिटी administrative authority है, it is the governing body and also the trustee. This word is more important. Also the trustee of society's property, that is given under section 2 of the MC.
एक गहरी चीज आपको ये समझना है, कई सोसाइटीज में ये होता है कि मैनेजिंग कमेटी ने सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड किसी कारण के लिए विड्रॉ कर लिया विदाउट मेजॉरिटी जनरल बॉडी रेजोल्यूशन। मैनेजिंग कमेटी बोलती है मेरे को ये खर्चे के लिए चाहिए था, मुझे वो खर्चे के लिए चाहिए था, वगैरह वगैरह। अगर मैनेजिंग कमेटी ने सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड किसी भी कारणवश बगैर प्रायर नोटिस एजेंडा एंड मेजॉरिटी जीबी रेजोल्यूशन के बगैर अगर विड्रॉ कर लिया हुआ है, तो मैनेजिंग कमेटी क्रिमिनल लॉज के अंतर्गत गुनाहगार हो जाती है, विच इंक्लूड्स ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फ्रॉड, misrepresentation वगैरह. I'll just repeat this thing for the benefit of our friends. If managing committee withdraws sinking fund and repair fund for any purposes without prior notice agenda and majority general body resolution, majority general body का resolution का मतलब है जो attendee general body members है उस मीटिंग में उनका majority वोट होना चाहिए उस काम के लिए. So if the managing committee is withdrawing this fund without general body permission resolution, then managing committee becomes liable for criminal offenses which includes breach of trust, cheating, fraud, misrepresentation, etc. एक मजेदार चीज और भी है कि आपके ये सारे के सारे जो भी फंड्स बैलेंस शीट में दिखाई देते हैं, सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड वगैरह वगैरह वगैरह, they can be used to pay off very old liabilities of housing society. जैसे कानूनी तौर पे इनकम टैक्स की तरफ से कोई डिमांड आई हुई है, जीएसटी की तरफ से कोई डिमांड आई है, प्रॉपर्टी टैक्स की तरफ से है, एनए टैक्स है, वगैरह वगैरह. मतलब पुराने डिमांड्स पड़े हुए हैं, आपने नहीं भरा किसी कारणवश, आपने डिस्प्यूट क्रिएट किया, तो ये सारे फंड एज इट इज, जैसे मैंने पहले बताया, ये सारे स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज आपके ये फंड्स को अटैच कर सकते हैं. इसी तरह सोसाइटी जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन से ये सारे फंड्स यूज कर सकती है अपने पुराने स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए. एक और मजेदार चीज है कि ये सारे फंड्स कैन बी यूज टू पे ऑफ डैमेजेस एंड कंपनसेशन टू मेंबर्स और वेंडर्स. मेंबर्स मीन सोसाइटी मेंबर्स. वेंडर्स का मतलब है जैसे आपके पास में लिफ्ट के वेंडर हैं या और कई भी वेंडर्स होते हैं, एसटीपी वेंडर्स होते हैं, क्लब हाउस के वेंडर्स होते हैं, वगैरह वगैरह, या और कोई भी हो. तो सिंकिंग such funds, any of the such funds can be used to pay off damages, compensation to members or vendors or whosoever as and when directed by consumer court और अदर कोर्ट्स. कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में रीडेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है और सेल्फ रीडेवलपमेंट का प्रोसेस चलता है, तो उस समय ये जो पैसे जमे हैं आपके सोसाइटी में, ऑल दिस एक्यूमुलेटेड फंड्स, उस समय लेंडिंग बैंक स्क्रूटिनाइज करता है आपका बैलेंस शीट में और ये देखता है कि आपके बैलेंस शीट में कितना फंड्स एक्यूमुलेटेड है, टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल हेल्थ and repayment capacity of society and its society members before financing the housing society self redevelopment project. तो यहाँ पे हम आज का टॉपिक कंक्लूड करते हैं और we will take up some questions that are there in the chat box. मिस्टर संजीव शाह का एक प्रश्न है, is repair and maintenance fund and repairs and maintenance charges same or different? Can society collect both of them every quarter in the maintenance bill? सर जी, रिपेयर फंड अलग दिया हुआ है. जैसे मैंने आपको बताया कि रिपेयर फंड आपका 13B में 13A में दिखाया हुआ है और 13C में सिंकिंग फंड दिखाया हुआ है. तो वो तो आपको कंपलसरी लेना ही लेना है. लेकिन जो रिपेयर और मेंटेनेंस चार्जेस है, दैट इज एक्चुअली, आप शायद ये कहना चाह रहे होंगे कि मेजर सिविल रिपेयर फंड की बात कर रहे होंगे. वो आप सिर्फ तभी ले सकते हो जब वो जनरल बॉडी में स्पेसिफिकली पास हुआ हो कोई प्रोजेक्ट के लिए, जैसे प्लास्टर प्रोजेक्ट है या पेंटिंग प्रोजेक्ट है, वगैरह वगैरह.
तो उसी समय लेना है वो फंड, और उतने ही दिनों के लिए, उतने ही महीनों के लिए लेना है जितना जनरल बॉडी में पास हुआ है। लेकिन रिपेयर फंड जनरल बॉडी में पास करो या नहीं करो, आपको उसको कलेक्ट करना ही करना है। Can I interrupt, sir? Okay, Mr. Sanjeev Shah, please go ahead. Yeah, no, repairs and maintenance fund as per 13A is collected at 0.75% of the construction cost. But the society is already collecting repairs and maintenance charges separately. Again, as per bylaw 67, for routine maintenance of the society property at the same rate, 0.75% of the construction cost. So now society wants to collect both these things, repairs and maintenance charges at the same rate, as well as repairs and maintenance fund at the same rate. So the total comes very high, because this repairs and maintenance fund is not going to be utilized immediately, whereas repairs and maintenance charges is going to be utilized immediately for day-to-day repairs. Sir, it is this way. In the bill, you have got only one head of account that you can collect, that is service and maintenance charges. Right. Okay. Now you cannot add the word repairs over there. Okay. Right. So major civil repair fund is a separate fund altogether. It is a temporary fund. Right. That will be created as and when required. वो खाली जरूरत के वक्त आपको कलेक्ट करना है. Right. Sure. और जो सर्विस एंड मेंटेनेंस चार्जेस है वो आपके बायलॉ 65 से लेके 68 तक शायद बताया गया हुआ है. राइट. आपने 67 बोला, अलग अलग बायलॉज में ऊपर नीचे होता है. बट इट इज टू बी कलेक्टेड ऑन एज पर रिपेयर फंड सेपरेट and service and maintenance charges separate, and major civil repair funds, if at all passed in a general body resolution based on a project, then only you can collect. If there is no project, you cannot collect. Yeah, but this maintenance charges, again, as per the bylaw, is also minimum 0.75% of the construction cost. No, sir. That maintenance charges depends on your on your yearly budget projection report under section 75. सेक्शन 75 क्या बोलता है कि आपको बजट प्रोजेक्शन रिपोर्ट बनाना है. उस बजट प्रोजेक्शन रिपोर्ट में बैलेंस शीट में एक्सपेंडिचर साइड में सारे हेड ऑफ अकाउंट्स होंगे. राइट. ठीक है ना. अगर मानो आपका 1 लाख रुपए का उसमें हेड ऑफ एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखा रहा है, कोई भी फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट उसमें नहीं ले पाओगे और एज कॉन्ट्रीब्यूशन. तो 10 लाख रुपए आपका एक्सपेंडिचर दिखा रहा है और आपका कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर्स which should exclude membership entrance fees, membership transfer fees, share transfer premium, interest, so and so. Right. मतलब it has to be pari passu. जैसे अकाउंट में बोलते हैं ना कि सिक्योरिटी एजेंसी को 100 रुपए दिया तो 100 रुपए मेंबर से लेना है. राइट. आप ये नहीं बोल सकते हो कि सिक्योरिटी को 100 रुपए दिया लेकिन मेरे पास वो पैसा पड़ा हुआ था ना पहले का, उसी में से हम यूटिलाइज कर लेंगे. नो, यू कैन नॉट डू दैट. पहले का जो पैसा पड़ा हुआ है उसको ईयर एंड में रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना है. वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. ओके. फाइन सर, लेट्स सी. तो बजट प्रोजेक्शन शीट के अंदर 10 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर है, 9 लाख रुपए का इनकम है. तो अब उसको पारी पासू करना है, एट पार लेके आना है. तो वो 10 लाख विल बी डिवाइडेड अमंगस्ट योर 100 मेंबर्स और वो आपका सर्विस और मेंटेनेंस कंपोनेंट कहलाएगा. थोड़ा सा कैलकुलेशंस है, बट वी विल बी टेकिंग ए वेबिनार ऑन दिस पर्टिकुलर इश्यू सम टाइम इन फ्यूचर. ऑलराइट, थैंक यू. मिस्टर लक्ष्मीकांत देसाई का प्रश्न है, विल कॉर्पस फंड बिकम टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एट द हैंड्स ऑफ सोसाइटी if society receives it directly from the developer under redevelopment of society, and continuing this case will it be further taxable as per income tax at the hands of the members upon its distribution to the society? Yes sir, whatever you receive, there is again income tax tribunal ruling कि जो भी कुछ आपको मिलता है that will be taxable, interest also and the fund also. However, if you generate corpus fund from amongst the member, तो income tax taxable नहीं है. However, interest received on that corpus fund FD is taxable. These taxes are to be borne by the society and not by its individual members. अगर आपने वो पैसा मेंबर को डिस्ट्रीब्यूट किया, किस चीज के लिए डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप? आपका डिस्ट्रीब्यूशन तो तभी होगा जब आपका
इनकम होगा बैलेंस शीट में, तो आप डिस्ट्रीब्यूट करने के कैपेसिटी में आ जाते हो। अगर नहीं है और सिर्फ इनकम कॉर्पस फंड का आता है तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। वो कॉर्पस फंड प्लस उसका इंटरेस्ट विल अगेन फॉर्म कॉर्पस फंड ओनली। मिस्टर मिर्जी का प्रश्न है, while we keep the construction cost whatever was, let's say 20 years ago, can we not each year or once in 2 years keep on increase the maximum percentage mentioned against sinking fund and repair fund as compared to doing the revaluation of construction cost every 2 years? You can do it, but there has to be a justification for everything. There has to be a reasoning for the same. If you increase it, let us say आपका 20 बरस पहले 200 रुपए कंस्ट्रक्शन कॉस्ट था, आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया उसको तो 300 रुपए कर दिया, 400 कर दिया, वगैरह वगैरह। आज 2022 में आके आपका इंक्रीज करते करते वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 500 रुपए जाता है या 600 जाता है या 1000 जाता है। लेकिन आज के दिन का आर्किटेक्ट ये सर्टिफाई करता है कि मलाड एरिया में, कांदिवली एरिया में, फला एरिया में construction cost is approximately 3,000 rupees per square feet. Then this particular calculations which you mentioned goes haywire. It does not rhyme with the collection as per the construction cost, prevailing construction cost. क्योंकि आप repairs कराओगे सर जी, तो prevailing construction cost का हिसाब से रिपेयर होगा आपका। आप ये ध्यान रखें कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का सिर्फ 1%, ओनली 1% ही आप जमा कर रहे हैं पर ईयर बेसिस पे। तो 20 साल में सिर्फ आपने 20% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जमा किया है। वो तो लकी आप ये है कि आपको उस पे इंटरेस्ट आता है तो आप वो सिंकिंग फंड में वापस घुमा सकते हो, री इन्वेस्ट कर सकते हो। Okay, he wanted to ask, Mr. Mirji wanted to ask something, but okay, Mr. Mirji, you are back. You may ask your question, please. Mr. Hemant Mirji. Okay, Mr. Sanjeev Saha का एक दूसरा प्रश्न है, from which fund society can spend money for any renewals in the society like renovation of garden and gym facilities? If it is a capital expenditure, जैसे गार्डन में आपने ट्रैक्टर मंगा के करना है या जिम में आपके जिम इक्विपमेंट्स वगैरह मंगा के करने हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिस पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाले हो, अगर डेप्रिसिएशन क्लेम करने वाले हो तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्लासीफाई हो जाएगा या टोटली राइट ऑफ कर दोगे उस एक्सपेंडिचर को। पर इस सारे कामों के लिए आप सोसाइटी के कोई भी जमा फंड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट कंडीशन इज प्रॉपर प्रायर नोटिस एजेंडा इश्यू करो जनरल बॉडी मेंबर्स को, और मीटिंग जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान उसका प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करो। और बाकी छोटा खर्चा जो भी कुछ है वो आप मेजर सिविल रिपेयर फंड करके आप जनरेट कर सकते हो। अगेन when there is a budget projection report, you have to foresee, budget projection का मतलब हम प्रोजेक्ट करते हैं आने वाले आने वाले साल के लिए, तो हम वहां पे आपको प्रोजेक्ट करना है उस चीज को। जैसे कंपनीज में कैसे करते हैं, हम सोसाइटी में नहीं कर पाते हैं क्योंकि शायद हम अज्ञान है उस चीज से, लेकिन कंपनीज में तो करते हैं। आप पेपर में भी देख सकते हो, कंपनीज के बैलेंस शीट में भी दे सकते हो कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, ये खर्चा है, वगैरह वगैरह। आप मिस्टर संजीव शाह का एक और प्रश्न है, इज जीएसटी एग्जेम्प्टेड लिमिट थ्रेशोल्ड ऑफ 7500 पर मंथ अवेलेबल ऑन कलेक्शन ऑफ दिस फंड्स? नो सर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। मेंबर से जो भी कुछ कलेक्ट करोगे, अगर आपका 20 लाख रुपए के 20 लाख का टर्नओवर के ऊपर पहुंच गया तो आपको जीएसटी लेना है। अगर उस पर्टिकुलर मेंबर का मेंटेनेंस बिल 7,500 से नीचे है तो ऑटोमेटिकली उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जीएसटी हर चीज पे लगेगा। 2-3 चीजें सरकार ने छोड़ दी है, जैसे कोई उदाहरण के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बीएमसी प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, प्रोफेशन टैक्स, वाटर चार्जेस, एनी टैक्स, और अगर बीएमसी ने पानी दिया है तो उस पर जीएसटी लगेगा। ऐसे कविता
कापाही का एक प्रश्न है, यू मेंशन ₹10 per year per member has to be collected. Would you please repeat that points? Okay, I'll do that. Education fund, section 68, रेड विथ का मतलब ये होता है कि वो सेक्शन भी एप्लीकेबल है, प्लस ये प्लस ये प्लस ये, ऐसा। तो सेक्शन 68 रेड विथ 154B6, रेड विथ 154B8, इसके अंतर्गत आपको ₹10 पर मेंबर पर मंथ, मतलब ₹120 सालाना जमा करके स्टेट फेडरल सोसाइटी, जो अथोराइज स्टेट फेडरल सोसाइटी होगी, उसमें आपको जमा करना है। मिस्टर रशीद का एक प्रश्न है कि व्हाट इज कॉर्पस फंड। अब कॉर्पस फंड्स आप अलग से कॉर्पस फंड के नाम पे आप कलेक्ट कर सकते हो, या बिल्डर ने जब आपको सोसाइटी हैंडओवर की तो उस समय कोई रकम उसने आपको हैंडओवर किया होगा, ये बोल के कि मेरे तरफ से ये कॉर्पस फंड है। तो जैसे कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि खुशी में मैंने आपको ₹100 दे दिया, या कानूनी तौर पे मैंने आपको ₹100 दे दिया वगैरह, तो ये कानूनी तौर पे जो फंड्स यहाँ वहां से आ जाते हैं तो ये कॉर्पस फंड में चले जाते हैं। आप कॉर्पस फंड अलग से भी कलेक्ट कर सकते हो बाकी मेंबरों के पास से, बाय पासिंग प्रॉपर जनरल बॉडी रेजोल्यूशन। मिस्टर विक्रांत जिंदाल का एक प्रश्न है कि सोसाइटी कलेक्ट्स मैंडेटरी अप्रूवल इन AGM social get together fund as a yearly get together party. Is it permitted if one or two members object and not interested in participate in society function? आपको ये बता दें कि आपके सोसाइटी का जो प्रियम्बल है, आपने सोसाइटी किस चीज के लिए रजिस्टर किया हुआ है, ये आपके जब आप सोसाइटी रजिस्टर करते हो तो फॉर्म ABCD में दिया होता है। अगर आपने ये बोला सेक्शन 2(16) के अंदर में कि हमारे सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड यू कॉमन एमिनिटीज एंड सर्विसेज, ओके, दैट इज द कीवर्ड। सेक्शन 216 में लिखा हुआ है, आप देखिएगा फुर्सत मिले जब भी। तो अगर आप कॉमन एमिनिटीज और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो कॉमन एमिनिटीज में आपका सोशल गेट टुगेदर वगैरह नहीं आता है, तो वो पर्टिकुलर चीज अलाउड नहीं है। कई केस लॉज ऐसे आ चुके हैं जिसमें ये फंड्स कलेक्ट करना मना किया हुआ है। प्लस तो जैसे मिस्टर संजीव शाह ने बताया कि बायलॉ 65 या 66 में आपको ये दिखाया गया है कि आप का मेंटेनेंस बिल में क्या क्या हेड ऑफ अकाउंट्स हो सकता है। तो उस हेड ऑफ अकाउंट में आपका गेट टुगेदर चार्जेस नहीं है, कल्चरल फेस्टिवल चार्जेस नहीं है। बट हाउएवर दिस इज डिबेटेबल इफ 100% मेंबर सेज कि वी शुड कलेक्ट दिस पर्टिकुलर फंड, ₹10 पर महीना कलेक्ट करना है, तो बायलॉ में अमेंड करो आप, यू शुड अमेंड द बायलॉज वाया प्रॉपर prior notice agenda and majority resolution to amend the bylaws for this particular purpose. If you amend the bylaws, then you are entitled to collect this particular fund for festivals, etc. उस bylaws में आप ये दर्शा दीजिए कि ये फंड हम किस किस पर्पस के लिए यूज करने वाले हैं। अगर ये डिफाइन कर दिया आपने bylaws में तो legally it becomes collectible. The deputy registrar or the registrar or the cooperative court is also bound by the bylaws and the disputes will not take place. There is a question by Kavita. Old repair fund collection not utilized. Should it be returned to the member? Repair fund, sinking fund, ये fund, वो fund, they are to be utilized only and only for purposes of society development, needs of the society, and cannot be returned to the member. आप लगभग हर सोसाइटी में एवरेज 5-1 साल में मेजर रिपेयर्स निकलता ही निकलता है, कुछ ना कुछ निकलेगा ही, तो आप ये फंड उसमें यूज करिए।
कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना उसमें। स्नेहा मोदी का एक प्रश्न है, माई सोसाइटी डू नॉट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स ऑफ फंड्स, एज पर कैलकुलेट 40 lakhs, MC deposit only 20 lakhs, what we do for action on MC? अगर आपका सब मिला जुला के 40 लाख रुपए का फंड कलेक्ट हुआ है और डिपॉजिट 20 लाख रुपए का हुआ है, तो ये तो स्वाभाविक हो गया कि कहीं ना कहीं आपने वो फंड का गोलमाल किया हुआ है। तो उसके लिए आप बाकी की कार्यवाही करवा सकते हो। जैसे हो सकता है आपके पास कार्यवाही का जो मुद्दा बने वो सेक्शन 89A में बने, जहाँ पे आप इंस्पेक्शन करवा लो या आप रीऑडिट करवा लो सेक्शन 81 के अंदर में। अगर ऐसा सब प्रूव हो जाता है आपने जो बोला, तो मैनेजिंग कमेटी को अपने जेब से वो फंड सोसाइटी को वापस करना है। राजेश लोम्बार का एक प्रश्न है, कैन द सोसाइटी इन्वेस्ट इन HDFC फिक्स्ड डिपॉजिट्स ट्रस्ट? आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, पर जितना मैं समझा हूं मैं ये बता दूं कि HDFC इज ए प्राइवेट बैंक, उस बैंक में आप ये फंड्स का डिपॉजिट नहीं कर सकते। हाउएवर HDFC के जो हाउसिंग फाइनेंस स्कीम्स की जो कंपनियां हैं या उनके डिबेंचर्स हैं, आप उसमें ये फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हो, बट नॉट इन ए बैंक। मिस्टर सुनील का एक प्रश्न है, इफ सिंकिंग फंड फिक्स्ड डिपॉजिट इज पार्टली यूटिलाइज्ड, इन व्हाट वे कैन दिस बी मेड गुड इन फंड लेटर? सर जी, एक बार आपने वो फंड यूटिलाइज कर दिया तो उसे वापस जमा नहीं कर सकते आप। सिंकिंग फंड का फंडा वही है। अगर आपने उसे फिर से कलेक्ट करने की कोशिश किया तो बायलॉ 13A और 13C का उल्लंघन होता है, जो बोलता है कि 0.75% ही लेना है, 0.25% ही लेना है। लेकिन आप फिर से कलेक्ट करोगे यही फंड तो वो उस 0.25 और 75% के ऊपर चला जाएगा। मिस्टर अनिल जंबा का प्रश्न है, विल दिस वेबिनार बी अवेलेबल लेटर ऑन वेबसाइट? Sir, this webinar is being recorded. It will be uploaded on our website. It will also be uploaded on YouTube, and it will also be uploaded on the YouTube channel of Sahakar Bhan, something of that sort. But it is there on our website. You will be easily able to see it. Which fund can CHS use for deemed conveyance? डीम्ड कन्वेंस के लिए देखिए ऐसा है कि डीम्ड कन्वेंस का जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए है जो कोर्ट फी भरना है। और अगर कोई मेंबर का कोई लेकुना है स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन का, तो वो मेंबर भरता है। और बाकी डीम्ड कन्वेंस के लिए अगर आप लॉयर एंगेज करते हो तो लॉयर का फीस सारे मेंबरों को सर्विस और मेंटेनेंस हेड, मतलब लीगल चार्जेस जो दिया हुआ है वो उसमें से आपको यूटिलाइज करना है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि डीम्ड कन्वेंस का कोई अनऑफिशियल कोई खर्चा देना है, तो उससे सोसाइटी का बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं है। आप जो मर्जी आए आप जहां से भी खर्चा करो, पर बैलेंस शीट से वो रकम नहीं निकलेगी, अदरवाइज इट विल बी व्हाट इज कॉल्ड एज मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। मिस्टर एडवोकेट प्रकाश मौर्य साहब का प्रश्न है, वाई सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड शुड नॉट बी रिप्लेनिश्ड? इफ यू आर गोइंग टू रिप्लेनिश दिस सिंकिंग फंड, अगर आप फिर से जमा करते हो तो सिंकिंग फंड का जो दायरा है 0.25% और रिपेयर फंड का जो दायरा है 0.75%, उसका उल्लंघन हो जाता है। दैट इज वाई इट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड और रीडिमांडेड और डन। अगर आप ये सोचते हो कि मेरे किटी में 1000 रुपये पड़ा था वो हमेशा 1000 रुपये ही बना रहे, तो दिस इज नॉट प्रॉपर। इट इज अनवाइज टू थिंक कि वो पैसा हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। मनी इज मेंट फॉर स्पेंडिंग, सो दिस फंड्स ऑल आर ऑल्सो मेंट फॉर स्पेंडिंग। यू कैन नॉट कलेक्ट सिंकिंग फंड अबव दैट पर्टिकुलर रेशियो। यस मिस्टर प्रकाश। यस सर, आई वांट टू से कि अगर हम उसको यूज कर लेते हैं वैसे भी 0.25 और 0.45 75 is very less, and over the period say 10 years 20 years the amount is very low. If
we go to the general body to increase that in the proportionate what you have suggested. Then also, if it is utilized, suppose after 10 years, 20 years, the building requires a repairment, we utilize that, and after say 5 years again the requirement is there, from where the members will bring it. That is why I just suggested Yes, because asking this. there is another, if you read bylaw 13B, Yeah, the 13B says, क्या बोलता है, मेजर सिविल रिपेयर फंड आप जमा कर लो। जैसे okay, उदाहरण के तौर पे 2000 साल में आपने सिंकिंग फंड का 50 लाख रुपए यूज कर लिया, right, 2015 साल में आपको फिर से 50 लाख रुपए की जरूरत है। right, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं सिंकिंग फंड वापस जमा करूंगा। उस समय आप मेजर सिविल रिपेयर फंड जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन से फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिखाओ जनरल बॉडी को कि मेरे को इस कारण से पैसा चाहिए और हम इतने इतने महीने में इस चीज को जमा करेंगे, आप वहां से फंड यूटिलाइज कर लो। or regular contribution will be continued as old style. रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन इज मैंडेटरी अंडर योर अप्रूव्ड बायलॉज। नहीं तो आप बायलॉ का उल्लंघन कर रहे हैं आप, Right, है ना। कोई मेंबर डिस्प्यूट करता है, कंप्लेंट करता है, तो मैनेजिंग कमेटी को तकलीफ होने वाली है। okay, okay, आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि आपने सिंकिंग फंड जमा नहीं किया तो okay, सोसाइटी का नुकसान हुआ है वो। right, इट कॉन्स्टिट्यूट्स नेग्लिजेंस, इट कॉन्स्टिट्यूट्स डेफिशिएंसी। सेक्शन 73(1)(b अगर आप देखेंगे तो ये सारे पैरामीटर उसके अंदर कवर्ड अप हो जाते हैं। okay, तो okay, मेरे नेग्लिजेंस, मेरे डेफिशिएंसी का पनिशमेंट भी दिया हुआ है 146 और 147 सेक्शन में। आप सोसाइटी के मेंबरों का नुकसान करेंगे ना। right, right, sir. ओके, Okay, सो नेक्स्ट, so that means नेक्स्ट गो अहेड सर, गो अहेड। that means the routine जो हम लोग contribution ले रहे हैं वो continue रखने का once you have utilized the funds, right? टिल यू डी रजिस्टर योर सोसाइटी Yeah, yeah, और टिल यू लिक्विडेट योर सोसाइटी, yeah, ये फंड आपको हमेशा कंटिन्यू रखने, मेंबर हो या नहीं हो, okay, मर गया हो या जिंदा हो या भाग गया हो या कुछ भी हो, right, sir. पैसा तो लेना ही लेना है। Right, नहीं तो बायलॉज का आप उल्लंघन कर रहे हो। yes, sir, yes, sir. प्रॉब्लम ये है कि हम कानून का उल्लंघन नहीं करना है, इसीलिए हम ये सारे पैसे ले रहे हैं। Right, आपके बुजुर्गों पे बहुत सी ऐसी सोसाइटीज आएंगी जहाँ पे ये उल्लंघन आम दिखेगा। सर, आप आरटीआई के थ्रू आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बोल लो कि मेरे को 50 आपके कार्य क्षेत्र के दायरे में जितनी भी सोसाइटियां हैं उनकी बायलॉज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और ऑडिट रिपोर्ट का सेट दो, विच इज दे आर बाउंड टू कीप इट। आप उसमें स्टडी करने को देखोगे तो आपको तमाम लेकुनास दिखाई देंगे। right, sir, yes, sir. मिस्टर अनिल पात्रो भाई, यू वांटेड टू से समथिंग। Thank you, sir. यस सर, गुड इवनिंग सर। इसी से रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन है। मेजर रिपेयर फंड 3 साल पहले सोसाइटी ने कलेक्ट किया टू द ट्यून ऑफ 30,000 रुपीज पर मेंबर। सोसाइटी ने रिपेयर फंड, दैट मींस सिविल रिपेयर फंड, करेक्ट है? सिविल एक अलग से निकाला है, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर जो अपना आता है बिलिंग, उससे अलावा एक सप्लीमेंट्री बिल लगाया, उनको टाकी ठीक करना है और थोड़े बहुत मेजर रिपेयर्स करना है, पाइपलाइन वगैरह। यस सर। आउट ऑफ 150 members, only 15 members have paid full amount, और उसको भी 3 साल हो गए। ओके, और सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी अभी बर्खास्त हो गई है ओके, और इलेक्शन ऑफिसर रखा है, लेकिन वो पैसे अभी जिन 15 लोगों ने वो पैसे दिए, बाकी लोगों ने नहीं दिए ओके, 3 साल से। तो वो मेंबर जिन लोगों ने दिए हैं वो लोग क्या बोल रहे कि आपने 3 साल से काम भी नहीं कर रहे, हमारा नुकसान भी हो रहा है 30,000 का, और आप हमारे पैसे को फिर एफडी में डाल के आप उस पर इंटरेस्ट कर रहे हो, और मेन थिंग जो काम कर रहे हैं वो काम ही नहीं हुआ। यस, तो इसमें के सर क्या सोल्यूशन देंगे आप? ओके, क्या आप मेंबर्स पैसा वापस मांग सकते हैं दिया हुआ, या फिर उसको रेगुलर एक रिक्विजिशन दे सकते हैं? सेक्शन 76 में लिखा हुआ है ये चीज, हाँ सेक्शन 76 में, कि 1/5 मेंबर मतलब 20% मेंबर एक एजेंडा दे सकते हैं आपको। नहीं, 20% नहीं होगा, आउट ऑफ 150 ओनली 10 या 12, 20% तो नहीं होगा, एकदम मिनिमम लोगों ने ईमानदारी से भरे। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोसीजर बता रहा हूँ, या आपको दूसरा भी प्रोसीजर बता देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं। तो 20% मेंबर्स ये रिक्वेजिशन दे दे मैनेजिंग कमेटी को कि रिवर्स दैट पर्टिकुलर और रिवोक दैट पर्टिकुलर एजेंडा
3 साल पहले वाला, और वो पैसा रिफंड करा जाए अलॉन्ग विथ एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट इन द बैलेंस शीट. बट दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर सिंकिंग फंड एंड दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर रिपेयर फंड, वो 13A और 13C वाला. और जो ये 13B वाला है उसमें आप ये कर सकते हो. 13B मतलब आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए, आई कॉल इट मेजर सिविल रिपेयर फंड. वो हेड ऑफ टाइटल अगर हम बिल में डालते हैं तो इट लुक्स मोर नीट ऑल्सो, एंड ड्यूरिंग डिस्प्यूट्स ऑफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स इट हेल्प्स. अगर ये भी नहीं होता है तो ये 15 मेंबर सिंगल पिटिशन कोऑपरेटिव कोर्ट में डाल सकते हैं, बिकॉज इट इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस, कंटिन्यूइंग कॉज ऑफ एक्शन. उसमें लिमिटेशन खत्म नहीं हुआ है, तो कोऑपरेटिव कोर्ट में डाल दो. बोले पे ये रेजोल्यूशन के दम पे ये हमारे से अभी तक पैसे लिए जा रहे हैं, हमारा नुकसान हो गया, रेजोल्यूशन को रिवोक करके सोसाइटी को डायरेक्ट किया जाए कि ये पैसा हमें रिफंड करो. यू कैन ऑल्सो ऑफ कोर्स गो टू द सिविल कोर्ट ऑल्सो. सर अगर इंडिविजुअल मेंबर को जाना है तो इंडिविजुअल मेंबर भी जाइए. जो जॉइंट रजिस्टर के पास जाना है तो क्या जॉइंट रजिस्टर कुछ कर पाएंगे इस बारे में? सर ऐसा है कि अगर रेजोल्यूशन जनरल बॉडी ने पास किया है तो उसको खारिज करने का काम सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट का है. तो नेक्स्ट एजीएम में अगर उनको बोलते हैं कि आप ये जो रेजोल्यूशन निकाला था उसको कैंसिल कर दो, तो क्या वो भी वैलिड रहेगा इन एजीएम? यस सर, यस सर, यू कैन डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम्स. थैंक यू सर. वेलकम सर. मिस्टर नितिन राणे का एक प्रश्न है, फॉर पेंटिंग ऑफ बिल्डिंग विच फंड कैन बी यूज्ड, और फॉर पेंटिंग ऑफ बिल्डिंग हाउ फंड कैन बी कलेक्टेड. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस थिंग बट आई विल से इट अगेन. आपके पास बैलेंस शीट में जो भी फंड जमा है एक्सेप्ट शेयर कैपिटल और उसका ब्याज, आप सारे के सारे फंड्स निकाल सकते हो बिल्डिंग को पेंट करने के लिए, प्रोवाइडेड उसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हो लोकल आर्किटेक्ट के थ्रू, जनरल बॉडी में अप्रूव कराते हो, और फिर आप उसमें ये भी अप्रूव करा लो कि भाई हमारे पास में सिंकिंग फंड 50 लाख पड़ा हुआ है, या ये फंड सारा मिला के 50 लाख पड़ा हुआ है, पेंटिंग का खर्चा 20 लाख रुपए है, तो वी सैंक्शन टू विड्रॉ 20 लाख रुपीज फ्रॉम दिस बैलेंस शीट एक्यूमुलेटेड फंड्स. और अगर ये नहीं करना है तो आप जनरल बॉडी में स्पेसिफिक रेजोल्यूशन डालो टू डिस्कस एंड डिसाइड अमाउंट मनी collection for painting of building to the tune of rupees so and so in the ratio of so much rupees per month basis up to so many months. आप ऐसे कर सकते हो. दिस विल बी अंडर 13B में आप कर सकते हो ये चीज को, बायलॉ 13B में. अनिल जाम्बे का प्रश्न है, इन ए न्यूली फॉर्म सोसाइटी नो फंड्स फ्रॉम बिल्डर, फर्स्ट MC voted service maintenance charges per area wise, bylaw state otherwise, service charges is per unit wise, is it legal voting against the bylaws? सर जी ऐसा है कि bylaws को फॉलो करना हर सोसाइटी मेंबर का मैंडेटरी ड्यूटी है. अगर bylaw में लिखा है कि सर्विस और मेंटेनेंस चार्जेस विल बी पर फ्लैट वाइज, तो आप उसके विरुद्ध में आप कोई भी रेजोल्यूशन पास करोगे तो वो गैर कानूनी हो जाता है. हाउएवर 100 के 100% मेंबर ये एग्री करते हैं बायलॉज को अमेंड कर देने के लिए. रिमेंबर दैट अमेंडमेंट ऑफ द बायलॉज, जहां पे लिखा है पर यूनिट वाइज या पर फ्लाइट वाइज, वहां पे अगर आप अमेंड करने के लिए आप ये लिख देते हैं कि सर्विस चार्जेस विल बी कलेक्टेड पर फीट वाइज, और सारे मेंबर्स उसमें एग्री कर लेते हैं, तो आप वो कर सकते हैं. But this particular bylaw amendment is usually not allowed by cooperative registrar. However, this particular bylaw amendment can be done in condominium systems, resident welfare association systems, and so and so. Mr. Rajesh Lombar का प्रश्न है, which fund can society use to obtain an OC? सर जी ऐसा है कि ओसी ऑब्टेन करने का काम सोसाइटी का नहीं है. इट इज ऑफ द बिल्डर और ऑफ द डेवलपर. यू मे फाइल ए ग्रीवेंस पिटिशन, द सोसाइटी में फाइल
a grievance petition before the local consumer court against the builder, developer, whosoever, and seek directions to the builder to obtain OC. आपका उसमें सिर्फ लीगल चार्जेस जाता है. सोसाइटी अगर ओसी ऑब्टेन करने की कोशिश करती है तो उसके लिए बहुत लंबा चक्कर है और लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा है. अगर आप ये सोचोगे कि 5-10 लाख रुपए देके मेरे को ओसी मिल जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल. क्योंकि ओसी के टाइम पे रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट लगेगा, विच विल बी वेरीफाइड बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ द बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट, हु विल कम एंड चेक आउट. फिर वो देखेगा आपने नीच एरिया कवर कर लिया, डक्ट एरिया कवर कर लिया, आपने अपने कॉम्प्लेक्स में मंदिर बना लिया, आपने ये चेंजेस कर दिया, तो आपको ओसी कभी भी नहीं मिलेगा. मिस्टर रशीद का एक प्रश्न है, इज डोनेशन फंड टैक्सेबल? सोसाइटी को जो डोनेशन रिसीव किया और डोनेशन फंड के एफडी में डाल दिया वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन डोनेशन फंड के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा, जो इनकम इंटरेस्ट आएगा, वो पक्का टैक्सेबल है. मिस्टर एलेक्स नोरोना का एक प्रश्न है, हाउ कैन द मोबाइल टावर रेंट बी यूज्ड एंड अंडर विच हेड? सर जी, मोबाइल टावर का जो रेंट आ रहा है दैट इज एन इनकम फॉर द सोसाइटी विच विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट योर एक्सपेंडिचर. कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने मोबाइल टावर के ऊपर एक डायरेक्टिव भी निकाला है जिसमें यह कहा गया है कि मोबाइल टावर का 50% रेंट मेंबरों में बांट दो, बाकी 50% आप एक्सपेंडिचर में यूज कर लो. वो अलग टॉपिक है, बट देर इज नो सच थिंग एज मोबाइल टावर फंड. जो रेंट आया वो इनकम है, उसको वापरो, उसको खर्चा कर दो और खत्म कर दो. और खर्चे में खत्म होने के बावजूद भी अगर कुछ बच जाता है तो जो बचा हुआ जो रेसिडुअल पार्ट है, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उसको रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर दो. सर एक सवाल पूछ सकता हूँ? मिस्टर प्रकाश? यस सर. ओके, गो अहेड. The situation is the building is with as per the registration it is 100 flats suppose, but out of 100 20 flats are 2-3 bedroom. Out of 20 10 flats are joint, means they have jodi flat they have made it. So sinking fund will be charged to the 90 flats or the 100 flats. Okay. सिचुएशन ऐसा है कि फ्लैट 100 है, उसमें से 20 फ्लैट जो है वो 3 BHK है, बाकी 2 BHK, लेकिन 3 BHK में 10 फ्लैट ऐसे हैं जो ज्वाइन करके उन्होंने. अंडरस्टूड, योर क्वेश्चन इज अंडरस्टूड. यस सर. ओके, नाउ हाउ डू यू डिटरमाइन हाउ मेनी फ्लैट्स आर देयर? हाउ डू यू डिटरमाइन, मिस्टर प्रकाश? इट इज थ्रू द प्लान गिवन बाय द टू द BMC, द नंबर ऑफ यूनिट्स. तो बिल्डिंग का जो सैंक्शन प्लान्स है वो डिफाइन करता है कि आपके बिल्डिंग में कितने यूनिट्स हैं, कितने फ्लैट्स हैं. राइट. जितने अगर 100 फ्लैट है तो 100 शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करना है. राइट. और 100 मंथली मेंटेनेंस बिल्स इश्यू करना है और 100 हर चीज का फंड्स भी लेना है आपको. इंटरमीडिएटली अगर किसी ने एमलगेमेट कर दिया, उसको एमलगेमेशन बोलते हैं ना. राइट राइट. 10 फ्लैट 20 फ्लैट को जोड़ के 10 फ्लैट बना दिया. राइट. एमलगेमेट कर दिया. एमलगेमेशन का ये मतलब नहीं है कि बिल्डिंग के सैंक्शन प्लान्स को चेंज करना है. ओके, एमलगेमेशन इज ओनली ए फैसिलिटी दैट इज अलाउड बाय द सिविक अथॉरिटीज. मुंबई में म्युनिसिपल कमिश्नर जो अलाउ करता है ऑन पेमेंट ऑफ रिलेवेंट फीस, बट इट डज नॉट मेक बोथ द फ्लैट्स एज वन फ्लैट इन द सैंक्शन प्लान. सैंक्शन प्लान्स एक बार ओसी मिल गया, आपको हाथ में आ गया, राइट. तो आप कुछ भी कर लो, वो सैंक्शन प्लान्स अब चेंज नहीं हो सकता है. ओके. सैंक्शन प्लान्स में एक ही चीज चेंज हो सकती है, वो ये है कि सैंक्शन प्लान में 100 फ्लैट्स को रेसिडेंशियल यूनिट्स बताया गया हुआ है. राइट. 5 यूनिट बोलता है कि मुझे इसको कमर्शियल चेंज ऑफ यूजर करना है. आई वांट टू यूज इट फॉर ऑफिस और फॉर क्लिनिक और फॉर नॉन रेसिडेंशियल यूसेज. राइट. तो भी आपका सैंक्शन प्लान्स चेंज नहीं होगा.
लेकिन वहां पे उधर शेरा मार देंगे. शेरा मतलब क्या बोलते हैं उसको? रिमार्क मार देंगे कि नॉन रेसिडेंशियल यूसेज. That's it. But sanction plan parameters, sizes, this, that, etc. will not be changed. This shera, this remark will be utilized by the assessor. वो जो प्रॉपर्टी टैक्स वाले हैं, वो यूज करते हैं प्रॉपर्टी टैक्स लेवी करने के लिए. और उसका सिर्फ इतना ही मुद्दा है कि रेसिडेंशियल फ्लैट का प्रॉपर्टी टैक्स 100 रुपया था, कमर्शियल का कितना लगना चाहिए तो वो एसेसर डिमांड करता है, और इस चेंज ऑफ यूजर के ऑर्डर के बेस पे अब वो 300 रुपए कर देगा. राइट, इतना ही फंडा है. ओके ओके, थैंक यू सर. ओके, मिस्टर संजीव शाह का एक नया प्रश्न है. आर दिस फंड्स टू बी कलेक्टेड एवरी क्वार्टर और वन टाइम? ऑल्सो द कलेक्शन हैज टू बी मेड बाय रेजिंग ए सेपरेट बिल और ए मंथली मेंटेनेंस बिल. If you are talking of these funds which we mentioned, sinking fund, repair fund, this fund, that fund, then they have to be collected only and only through your monthly maintenance bill, because during Mr. Sanjay Sawant, can you mute yourself, please? Mr. Yes, okay, thank you. So during recovery proceedings, raising of a separate bill is not going to be feasible for you. You have to give a statement of accounts for your recovery proceeding. Recovery proceedings under bylaw is based only on your bills. That is monthly maintenance and service bills. Further, can it be collected quarterly, one time or monthly? It is to be decided in a general body meeting कि हमारा सोसाइटी का जो बिल्स है वो हम मंथली ले या क्वार्टरली ले या ईयरली ले. तो इफ इट इज जीबी's डिसीजन देन ऑफ कोर्स यू कैन डू इट. बट अगर आप ये बोलते हैं कि टिपिकली द बायलॉ प्रिस्क्राइब्स मंथली कलेक्शन और सोसाइटी उसको क्वार्टरली ले रही है, तो देन अगेन इट इज अ वायलेशन ऑफ द बायलॉज. यू कैन नॉट डू इट एंड द मेंबर कैन रेज ए डिस्प्यूट. मेंबर बोल सकता है कि ठीक है, आपको मैं मेंटेनेंस चार्जेस दे रहा हूँ, इंटरेस्ट नहीं दूंगा डिफॉल्ट का. थैंक यू. कविता कापे का एक प्रश्न है. इंटरेस्ट कलेक्टेड फ्रॉम डिफॉल्टिंग मेंबर्स ऑन मंथली बिल इंक्लूड्स अ परसेंटेज ऑन मेनी हेड्स. दिस इंटरेस्ट अमाउंट इज क्रेडिटेड वेयर? जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है, इट इज टू बी टेकन इट एज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर्स, दैट विल बी एन इनकम. मिस्टर कविता का प्रश्न है, कैन चार्जेस बी कलेक्टेड विदाउट रैटिफिकेशन और पासिंग इन जनरल बॉडी? सोसाइटी का कोई भी चार्जेस, किसी भी तरह का चार्जेस जनरल बॉडी के रेजोल्यूशन के बगैर कलेक्ट करना वायलेशन ऑफ द बायलॉज है, वायलेशन ऑफ द लॉ है, नॉट अलाउड. प्लीज होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट द. मिस्टर अमिताभ सिंह का एक प्रश्न है, कैन सोसाइटी ब्रेक सिंकिंग फंड डिपॉजिट विदाउट आस्किंग द जीबी? आई हैव आंसर्ड दिस 2-3 times, बट नाउ आई विल रिपीट. कोई भी फंड, सिंकिंग फंड हो या कोई भी फंड हो, जनरल बॉडी के मेजॉरिटी रेजोल्यूशन के बगैर आप ब्रेक नहीं कर सकते. मैनेजिंग कमेटी के पास खुद का अधिकार नहीं है कोई भी फंड, कोई भी फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करने का. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस टू डू दैट विदाउट, बिकॉज द सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी इज ओनली ए ट्रस्टी, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक चौकीदार आपके फंड्स के बारे में. आपके परमिशन लिए बगैर आपका फंड्स यूटिलाइज नहीं कर सकते. मिस्टर राजेश का एक प्रश्न है, इफ द एमसी हैज पास द जीबी रेजोल्यूशन फॉर मेजर सिविल फंड लास्ट 2 years बैक बट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज डिलेड, सो व्हाट इज द लीगल रेमेडी? वेल, अगर फंड्स कलेक्ट किया हुआ है, अकाउंट नहीं दे रहे हैं, तो जैसे पहले भी बताया मैंने कि आप रीऑडिट करवा सकते हो, आप इंस्पेक्शन करवा सकते हो, काफी कुछ चीजें हो सकती है. ओके, मिस्टर संजय सावंत, योर प्रश्न प्लीज, योर क्वेश्चन प्लीज. Sir, this is Kavita Kapahi. Can I ask a question, please? Okay, Miss Kavita, go ahead. So, in our society, this problem is there that without any ratification, I mean, MC has met up and made some resolutions way back in 2009.
and they have been collecting money on those bases. When we have challenged that, they have tried to ratify it in 2021. So is there a time limit between when it is for ratification, and what happens to the money that they have been collecting in the interim period of 12 years? Madam, managing committee cannot collect any funds. Can you hear me? Yes, sir. Managing committee cannot collect any funds without approval of the general body. And अगर आपने ये कहा कि मैंने कलेक्ट कर लिया फंड, बाद में रेटिफाई करेंगे, तो ये कोऑपरेटिव एक्ट में परमिसिबल नहीं है. सब्सिक्वेंट रेटिफिकेशन इज नॉट परमिसिबल, है ना, जिसको बोलते हैं ना पोस्ट डिफैक्टो, वो परमिसिबल नहीं होता है. मतलब पहले मैंने काम कर दिया और फिर बाद में मैं अप्रूवल लूंगा, ऐसा. दैट इज नॉट परमिसिबल in cooperative. Is there any bylaw for that, sir? Any section? You can refer section 75 for this particular. It's a big section, but you can understand. Okay. Under section 75, you have got an agenda, you have got a notice, and then agenda, and then a general body resolution has to be there. So, but they have been collecting this amount in the interim period. So, what is the relief that I can get? Legal relief is possible only in the cooperative court. Okay, sir. Mr. Kiran Bhosle, you wanted to ask something? Mr. Kisan Bhosle. सर एक्चुअली हमारे सोसाइटी में जैसा कि रिपेयर फंड यूज किया है कुछ 57 लाख, तो उसमें वेंडर ने जीएसटी इंक्लूड करके बिल दिया है, लेकिन कमिटी ने वो 8 लाख है वो सस्पेंस में रखा है. उसका कुछ पेपर गवर्नमेंट का जीएसटी भरा हुआ वो दिया नहीं, दूसरे नाम से पेमेंट सब कर दिया है. ये प्रूव है अपना बॉयलॉज के हिसाब से? आपने जो बताया वो फाइनेंशियल जालसाजी होती है, ठीक है ना. इट इज ए फाइनेंशियल फ्रॉड. तो आपके मैनेजिंग कमेटी ने अगर जीएसटी नहीं काटा है या नहीं भरा हुआ है कोई भी फंड के ऊपर, तो वो जालसाजी में आता है. तो उसको आप डेप्यूटी रजिस्ट्रार में कंप्लेंट करके इंक्वायरी लगाओ, और आप क्रिमिनल कोर्ट में भी कुछ मेंबर मिलके क्रिमिनल कोर्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं. अच्छा, मतलब ये गैर कानूनी है, मतलब ऐसा? यस, इट इज गैर कानूनी, टोटली गैर कानूनी. ओके, थैंक यू सर. जैसे कि आपने कुछ काम करवाया, अनिल शर्मा से काम कराया, समझो 10 लाख रुपए का, उसके ऊपर जीएसटी होता है लेटर से 1.5 लाख रुपया या 1.80 लाख रुपीज होता है. और वो बचाने के लिए छोटे छोटे बिल्स अलग अलग टाइप के ले लिए, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो आपने बड़ा कर ही दिया है ना. अगर आप जीएसटी अथॉरिटी को कंप्लेन करते हैं तो मैनेजिंग कमेटी के ऊपर भी दंड आता है, जेल भी आता है, और जो अनिल शर्मा ने ये काम किया है उसके ऊपर भी आता है. अच्छा, ओके, थैंक यू. Okay, thank you. There is a question by Mr. Hemant Mirji. What is the approximate average charges being charged by architect for issuance of the construction certificate? And is it necessary that the said certificate has to be necessarily issued by the architect of the building? Mr. Hemant Mirji, ऐसा है कि वो आर्किटेक्ट मर गया, गुजर गया, भाग गया, शिफ्ट हो गया दुबई में, तो आज के दिन पे जो भी पैनल रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट आपको जहां से भी मिलता है, प्रेफरेबली बीएमसी पैनल में हजारों आर्किटेक्ट हैं, अगर आप बॉम्बे में, तो आप उनको किसी को भी सम्मान कर सकते हैं. वो आके सर्वे करेगा आपके एरिया को, आपकी बिल्डिंग को देखेगा कि वो आरसीसी बिल्डिंग है या और किसी टाइप के स्टोन की बिल्डिंग है, आपके लिफ्ट क्या लगी हुई है, आपका एसटीपी क्या लगा हुआ है, आपके फ्री एरिया कितना है, वगैरह वगैरह. सारा वैल्यूएशन निकाल के आपको बताएगा कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आता है. तो यू कैन अपॉइंट एनी आर्किटेक्ट हु इज ए रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट. देयर आर सेवरल आर्किटेक्ट्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड, दे आर डिप्लोमा होल्डर्स आल्सो, बट इट्स you should not engage them because this certificate has to have some legal standing at times of dispute. Mr. Suresh Padi has a question. Can society invest funds in government securities? Yes, it is possible. 100% possible है, 1000% possible है. सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में
सोसाइटी के सारे फंड्स आप इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड फंड्स में भी ऐसा फंडा है कि कुछ फंड्स आर ओनली फॉर इंडिविजुअल्स। जैसे मिस्टर सुरेश के लिए एज ए इंडिविजुअल के लिए फंड इन्वेस्ट करने का प्रोविजन है। कुछ फंड्स आर अलाउड फॉर कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, फॉर लीगल एंटिटीज ऑल्सो, फॉर लीगल बॉडीज ऑल्सो। सो दैट इज वाई आई सेड कि कौन सा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है वो आपको एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर का रिपोर्ट लेना होगा, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो उसमें। अपने मर्जी से आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। जैसे उदाहरण के तौर पे पोस्ट ऑफिस में एक मंथली इनकम स्कीम है, ओके, वो खाली इंडिविजुअल्स के लिए है, तो सोसाइटी नहीं कर सकती। लेकिन आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं मैं तो यहीं पे डालूंगा करके, तो दिस आर ऑल थिंग विच यू शुड नॉट बी डूइंग इट, विच इज इलीगल। सुरेश पड़िया बोल रहा हूँ। ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं तो जिसमें तो जहाँ पे कुछ 8, 8.5 या 8% के आसपास मिलता है, तो वहां पे हाउसिंग सोसाइटी कर सकती है लीगली कि नहीं कर सकती? इंटरेस्ट रेट का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सारे गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में जहाँ पे भी ज्यूरिस्टिक बॉडी या लीगल बॉडी, लीगल एंटिटी को अलाउड है इन्वेस्ट करना, वहां पे आप कर सकते हो। मुझे सरप्राइज हो रहा कि कौन सा गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको 8% दे रहा है आज के। इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सर। अपना होमवर्क कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल कर लूंगा सर। ये जस्ट मुझे इन्फॉर्मेशन आई थी, इसके लिए मैं कोई तो मुझे बता रहा था, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं भी वेरीफाई करूंगा। आपकी बात सही है कि 8% से ज्यादा नहीं मिलता है, बात सही है आपकी। आप ऑफ कोर्स शेयर मार्केट में भी पैसे डाल सकते हो, इक्विटी मार्केट में भी डाल सकते हो, सोसाइटी ऑफ कोर्स। अच्छा, तो वो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है सर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट? कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी प्रोसीजर बताया कि आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर का रिपोर्ट लो, वो आपको बताएगा कि आपको कहाँ का इन्वेस्ट आप कर सकते हो। So society can invest in equities, correct sir? Society can invest in equities, it can invest in debenture, it can invest in mutual funds. Okay. And all the bonds, mostly all the bonds of railways, railway bonds, yes. Housing society, finance companies में invest कर सकते हो वगैरह। अच्छा, और उसके लिए AGM की परमिशन लेनी पड़ेगी सर? 1000% लेनी पड़ेगी। ओके, आपका फंड नहीं है ना सर, वो फंड वही का फंड है। हाँ, तो जिसका फंड है पहले उसको तो पूछ लो कि आपका पैसा इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ वहाँ। नहीं, वो बात सही है। और AGM को ये करने के लिए मुझे तो कुछ उनको अंडर विच सेक्शन ऑफ बायलॉज दिस इज पॉसिबल, वो कैसे मैं ढूंढ पाऊँ सर? वो सेक्शन 75 में लिखा हुआ है कि आपको AGM कैसे कॉल करना है। आपके बायलॉज में भी ढूंढ लीजिए कि आपको AGM कैसे कॉल करना है, उसमें मिनिमम एजेंडास क्या क्या होना चाहिए, वो सब आपको उसमें दिखाई देगा अंडर सेक्शन 75। ओके सर, थैंक यू सर। Sir, Kavita Kapahi again. I just wanted to ask regarding the periodicity for the architect construction valuation certificate. Is there any time that is mandatory under any law? 2 years, 5 years? Mainly to calculate repair fund, sinking fund. Is there any mandatory thing that it should be done every 2 years or every 5 years like that? It is not the mandatory period that is required to be understood. It is not the mandatory period that is required to be understood. It is required to be understood कि हमारे एरिया में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया है क्या, मेरे बगल वाला बिल्डिंग का जो फ्लैट बिक रहा है वो। आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट का कोई पीरियड वैलिडिटी या टाइम वैलिडिटी नहीं होता है, लेकिन जब आपको लगे कि आपके एरिया में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया है। There is no audio. Can everybody hear me please? Sir, I can hear. Yes sir. So you should consult an architect and then decide कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है। And typically I would suggest कि it should be revised every 2 years, so that considerable amount of money is there in your funds for meeting future requirements. Okay, anybody else has any question? We will be concluding in 5 minutes, please. और किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलिए मिस्टर संजय सावंत, बोलिए। Sir, we have 2 FDs of 5 lakhs each
and not in kept in sinking fund and repair fund, is in saving, and that interest is going to saving account. Can we keep the FD for repair fund and sinking fund? सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड का इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में नहीं ट्रांसफर कर सकते। आपको एफडी वैसे ही बनाना है कि वो इंटरेस्ट उसी सिंकिंग फंड में रोटेट हो जाए हमेशा के लिए। ओके, हेलो सर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? Go ahead, please. Yeah, sir, see, I'm an MC member, and in 2014, in the AGM, it was decided that we will collect something towards a cultural fund. That is mainly expenditure for the Ganpati in the building and all that. And last 2 years, the members who are handling the fund, they don't take the permission of the MC for spending money, and they don't inform all the members about lunch, dinner and all. So what we are thinking in the AGM, which is going to be held on 30th January, can we request the members that it is not mandatory and the MC is not being informed, and therefore as MC we would like not to conduct these collections through the maintenance bill. Whoever wants, let them do it independently on their own. Can we tell the members frankly all these things and stop the collection? You can tell the members anything you like, as it is in most societies. The managing committee tells the member anything they like. But however, your collection of the cultural fund is illegal, and that is not allowed by the cooperative registrar. If at all anybody makes a complaint, then that particular component of cultural fund वगैरह वगैरह वो उनके मेंटेनेंस बिल से डिलीट हो जाएगा। 1, सेकेंडली, अगर वो मेंबर कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करता है तो आपके ऊपर लीगल चार्जेस भी लग जाएंगे, और उसने अगर कोई मैटर को ट्विस्ट कर दिया तो आपसे आपका डैमेजेस और कंपनसेशन भी लग जाएंगे। सो इट इज बेटर you do not do all these things. Thank you very much, sir. Thank you. Yeah. Hemant sir, can I interrupt here? Yes, sir. Yeah, sir. As per the bylaws, appropriation of funds, you can transfer some percentage of your surplus income towards cultural fund, but that should be strictly used as per bylaw 5D. For except the religious activities, you can use for common welfare fund and cultural activities. So, I mean, is there any way? I mean, is it illegal? I mean, to collect the cultural fund. I mean, not collect from the members, but you can always transfer from your balance sheet excess income. You have to define what do you mean by cultural fund? Cultural activities. Right. Okay. अभी cultural activities एक cosmopolitan society में आपका cultural festival तो हो नहीं सकता है। Right, religious festival day है ना? अगर आप बोलेंगे कि मेरे सोसाइटी में 5 किस्म के लोग हैं, 20 लोग हैं, 20 हिंदू है, 20 मुस्लिम्स हैं, 20 क्रिश्चियन है, 20 पारसी है, 20 सिख है, राइट, तो और नहीं आना है मुझे, जैसे मुझे नहीं आना आपके फेस्टिवल में, मैं क्यों पैसा दूं? फॉर एग्जांपल फन एंड फेयर करते हैं सोसाइटी में, कैन दैट बी अ कल्चरल एक्टिविटी एंड कैन दैट, तो आप अपने जेब से अलग से पैसे निकालो, एक अलग से पेटी में डालो, उससे अलग से खर्चा करो, उसका हिसाब किताब आपस में आप लोग अपना देखो, और सोसाइटी के बैलेंस शीट से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। फाइन, क्योंकि कोई ना कोई मेंबर हर सोसाइटी में 2 से 3% मेंबर ना, 100 मेंबर की सोसाइटी में कम से कम 3 मेंबर ट्रबल शूटर्स होते हैं या ट्रबल मेकर्स होते हैं, राइट। तो वो चीज की तैयारी करते हुए आपको सोसाइटी चलानी है। राइट सर, एक क्वेश्चन था, पूछूं? थैंक यू सर। Yes, Mr. Prakash. Last question for today. We will conclude. सर, अगर हमको ये जो स्वीपर्स है, सिक्योरिटी गार्ड्स है, इनको जो हम दिवाली या ये देते हैं बोनस, तो उसके लिए फंड अगर कर सकते हैं क्या फ्रॉम द मेंबर्स की फॉर द व्हाट यू कॉल से, उनसे नाम से अगर कलेक्ट कर सकते हैं क्या फेस्टिवल? मेरे ख्याल से एक्ट में कहीं ना कहीं एक्स ग्रेशिया पेमेंट का प्रोविजन दिया हुआ है ना? शायद एक्ट के 17 नंबर या ऐसे कुछ तो भी पर्टिकुलर में एक्स ग्रेशिया का प्रोविजन दिया हुआ है, तो आप उसको दे सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव इनकम इन द बैलेंस शीट। या इनकम इज देयर। या सो यू मे पुट अप दिस प्रपोजल इन योर एमसी मीटिंग, पास ए रेजोल्यूशन, मेक द अप्रोप्रिएट पेमेंट, and
before that you need to take the approval of your GB also, क्योंकि उनका पैसा ही आप देने वाले हो यहाँ। हाँ नहीं, क्योंकि क्या होता है कि सिक्योरिटी गार्ड जाता है हर एक घर में, हर एक मेंबर्स अपने अपने हिसाब से पैसा देता है। Yes, that is the best. That is the best way to collect the fixed amount per month, say 10 rupees, 20 rupees. In the year you distribute during the Diwali or as an increment. बट सोसाइटी के बैलेंस शीट में आप ये नहीं डाल पाओगे, क्योंकि चेकआउट एक्स ग्रेशिया और बोनस था एक बारी, शायद उसको अमेंडमेंट के दौरान निकाल दिया हुआ है। ओके सर, ओके चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू। Okay, I think there are no other questions. I would like to invite Advocate Fatima if she's there. Are you there, ma'am? Yes, sir. Good evening, sir. Okay. I'll request you to speak a few words before we conclude this webinar. Sure, sir. Thank you, sir. It's been a wonderful session. Hearing you speak is always good because you are thorough with the subject matter and everything. So it's like pin drop silence. Like a classroom. And it has been a good experience listening to you, sir. It's been a good enlightening session on the funds of the society. And just to need to relook the act and the bylaws and just, make a revision of everything what you've spoken. Yes, ma'am. Okay. Thank you, ma'am, for your kind words. And thank you, sir. All thank friends. Thank you, sir. Thank you. Participating in this webinar, today's webinar. Thank you, sir. Thank you once again for attending this knowledge sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you, everybody. Wish you the same, sir. Good night. Thank you very much. Sir. Hemant ji, Thank you, sir. Thank you. Good night. Thank you.